ओम शांति। आज बाबा की साकार मूर्ति 17 जुलाई 2021। बाबा आज के विशेष नेत्रहीन के नेत्र दीते आसছেন, সাহারাহীন কে সাহারা দিতে আসছেন। বাবার কাজই হইল সব থেকে আলাদা, যে মনুষ্য আত্মা দেব আত্মা সাথে বাবার কোনো কম্পেয়ার নাই। বাবা সবার থেকে আলাদা। বাবার ওয়ান্ডারফুল পার্ট, ওয়ান্ডারফুল বাপ, ওয়ান্ডারফুল রামা। এই শিক্ষা দিয়ে বাবা সব বাচ্চাকে তৈরি করে দিচ্ছেন। তো বাবার মহাবাক্য আজকে শুনি আমরা। বাবা বললেন, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने आया है। ज्ञान सागर बाप জ্ঞানের तीसरा नेत्र দেওয়ার জন্য আসছে। तीसरा नेत्र মানে দুটা নেত্র তো আছে, বুদ্ধিরূপী নেত্র মানুষের এখন শেষ হয়ে গেছে, অর্থাৎ নাই। সে বুদ্ধিরূপী নেত্র দিতে আসে। ছিল তো ভিতরে, কিন্তু চোখ থাকলে ভিতরে চোখটা বন্ধ ছিল। এটাকে বাবা কি করলেন, জ্ঞানের আধারে খুলে দিলেন, जिससे आत्मा की ज्योति जग जाती है। बाबा আসেন तो आत्मा ज्योति जागिए दें, ज्योत जलाए दें। प्रश्न, बाप को करण करावन हार क्यों कहा गया है? बाबा হইলেন करण करावन हार। কেন বাবাকে বলে करण करावन हार? वह क्या करते और क्या कराते हैं? উনি কি নিজে করেন আর কি করান? অন্য দ্বারা করান, নিজে করেন না। उत्तर, बाबा कहते मैं तुम बच्चों को मुरली सुनाने का कार्य करता हूँ। बाबा আমাদেরকে জ্ঞান মুরলি শুনান। মুরলি শুনানা, মুরলি তো বাবা নিজেই শুনান না। मुरली सुनाता, मंत्र देता, तुम्हें लायक बनाता और फिर तुम्हारे द्वारा स्वर्ग का गेट अर्थात स्वर्ग का उद्घाटन कराता। उद्घाटन अर्थात गेट खोलिए देवा। तुम पैगंबर बन सबको पैगाम देते हो। मैं तुम बच्चों को डायरेक्शन देता हूँ, यह मेरी कृपा व आशीर्वाद है। बाबा থেকে আরও কোনো কৃপা বা আশীর্বাদ রাখার কোনো আশা রাখা যাবে না, কেন কি বাবা তো সব কিছু দিয়েই দিচ্ছেন। আর বাবা যে ডাইরেকশনটা দিচ্ছেন, শ্রীমতটা দিচ্ছেন, এটাই বাবার বহুত বড় কৃপা। বলে না, কেউ সুবুদ্ধি দিয়ে দিল, কমসে কম কিছু না করলো তো ভালো বুদ্ধি তো দিল, সুবুদ্ধি দিল। তো সুবুদ্ধিটা বাবা যে দিল, এই বাবার কামাল বা বাবার কৃপা বলা যায়। বাকি কৃপা যদি করার বাবা শুরু করেন তো সবার উপরে সমানভাবে কৃপা করতে হবে। কেন কি দেখেন, কর্ম অনুযায়ী মানুষ দুঃখ পায়। কারণ অকারণ পরিস্থিতি, নিজের কোন জন্মে কি কর্ম করেছে তার ফল মানুষকে ভোগতে হয়। তাই পরে মানুষ কি বলে দেয়, এটা ভগবান করেছেন, ভগবানের জন্যই এটা আমার দুঃখ হইল। ভগবান আজকে কেউ জন্ম নিল, মারা গেল, কারো অঘটন কিছু হয়ে গেল, কি বলবো, এটা ভগবানই করেছে। কিন্তু দেখা যায় যে উনি কিন্তু আমাদেরকে সব সময় ছত্র ছায়া বনে থাকেন। যেগুলা ঘটনা বা পরিস্থিতি আমাদের সামনে আসে, এটা আমাদের পূর্বজন্মের কোনো অ্যাকাউন্ট। সে অ্যাকাউন্টটাকে না বুঝে না জানার জন্য কি বলে দিই, ডাইরেক্ট মানুষ বলে দেয় ভগবান করেছে। ভগবানের সহ্য হইল না, ভগবানে নিয়ে গেলেন, ভগবানের করলেন, এই ভগবানের উপরেই দোষ দিয়ে দেয়। কিন্তু বাবা এই জন্য কাউকে কিছু করেন না। বাবা শুধু রায় দিয়ে দিচ্ছেন, তোমরা করে নাও, তোমরা ভাগ্যে নিজেই নিজে গড়ে নাও।
বাবা কারো ভাগ্যে গড়লে সবারে সমান করতেন, কেন কি বাবাকে ভক্তি মার্গে বলা হয় সমদ্রশী। ভক্তিতে বলছে সমদ্রশী প্রভু নাম तुम्हारो। তো সমদ্রশী প্রভু নাম तुम्हारो, তো ওই কর্তব্য উপরে ওনার এই মহিমাটা হয়েছে যে সবার উপরে উনি সমান দৃষ্টি রাখেন। উপর নিচে হয় এটা কর্ম অনুযায়ী হয়। গীত कौन आया आज सवेरे सवेरे, কে আসে গেল সকালে সকালে? ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, हम बच्चों ने सवेरे सवेरे, জাগানে কোন আয়া, বাচ্চাদেরকে ঘুম থেকে তোলার জন্য বাবা চলে আসলেন। এই জন্য বাবার সকালবেলা গান বাজে না, মেরে লাডলে জাগো, আখিয়া খোলো, শিব শিব বলো। তো এত ভালো করে আদর করে কে তুলবে? হ্যাঁ, লক্ষ্মীকে তো মা বাবা চিৎকার চেঁচামেচি করা শুরু করে দেয়, আর বাবা কত আদর করে বলে মেরে লাডলে জাগো। जो तुम्हारा तीसरा नेत्र, तीसरा ज्ञान का नेत्र एकदम खुल गया। ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा द्वारा तीसरा नेत्र ज्ञान का खुला है। बेटा बाबा द्वारा ही तीसरा नेत्र खुलो। कहते भी हैं बाबा ज्योत जलाने वाला है। बाबा হইল ज्योत জ্বালিয়ে দেয়, মানে ज्योत মানে আত্মা, আর আত্মাকে কি করে জ্যোতি জ্বলে যায়, মানে নিভে গেছিল ওটাকে জ্বলে যায়। परंतु वह बाप है यह कोई नहीं जानते। উনি আমাদের পিতা এটা মানুষ জানে না। ब्रह्म समाजी कहते हैं, ब्रह्म समाजी যারা ওনারা বলে वह समा है, ज्योत है, मंदिर में हमेशा वह ज्योति है जलाते। ब्रह्म समाजी मंदिरे सब समय ज्योत जलाने থাকে, क्योंकि वो परमात्मा को ज्योति स्वरूप मानते हैं, इसीलिए वह मंदिर में दीप जलाते ही रहते हैं, सब समय प्रदीप जले থাকে। अब यह बाप कोई माचिस से दीवा नहीं जलाते। हाँ, देशलाई दिए कोनो बाबा प्रदीप जलान ना, ये आत्मा रूपी प्रदीप के जलाइते হইলে কি লাগবে? ও মেচিস বা ও দেশলাই লাগবে না। বাবা কি করেন? জ্ঞানের আধারে আমাদের প্রদীপকে জ্বালান। यह तो बात ही न्यारी है, এখানকার কথাবার্তাই আলাদা। गाया भी जाता है ईश्वर की गतिमति सबसे न्यारी, ওনার গতিমতি সবার থেকে আলাদা। तुम बच्चे अभी समझते हो बाप सदगति के लिए आकर ज्ञान योग सिखलाते हैं। सिखलाने वाला तो जरूर चाहिए ना, शरीर तो नहीं सिखलाएगा। शरीर द्वारा आत्मा सीखबे, शरीर द्वारा परमात्मा सिखावे। आत्मा ही सब कुछ करती है, आत्मा आत्मा में ही अच्छे बुरे संस्कार होते हैं। आत्मार জন্যই বলা হয় পাপ আত্মা পুণ্য আত্মা, ভালো মন্দ সংস্কার আত্মার মধ্যেই থাকে। इस समय रावण की प्रवेशता के कारण मनुष्य के संस्कार भी बुरे हैं। रावण प्रवेश হয়ে গেল না, যখন রাবণ প্রবেশ করে দিল তখন কি হয়ে গেল? মানুষের সংস্কারও খারাপ হয়ে গেল। अर्थात 5 विकारों की प्रवेशता है। देवताओं में यह 5 विकार होते नहीं। भारत जब देवी राजस्थान था तो यह बुरे संस्कार नहीं थे। जब देवी राज्य छिलो तो ये बुरा संस्कार खराब संस्कारगुलो छिलो ना। सर्वगुण संपन्न थे, सब गुण संपन्न छिलाम हमरा। कितने अच्छे संस्कार थे देवी देवताओं के जो अभी तुम धारण कर रहे हो। देवी देवतादेरके देखलेई मन खुश हो जाए। देवी देवतादेर मतन गुणवान केउ छिलो ना, तो ओनादेर गुणटा आमरा एखन कि करतेछि? धारण करतेछि। बापी आकर सेकेंड में सर्व को सदगति देते।
बाकी गुरु गोसाई आदि वह यह तो भक्ति मार्ग में चलते आए, जो एक की भी गति सदगति कर नहीं सकते। बाप के आगे से ही सर्व की सदगति होती है। परम पिता परमात्मा को बुलाते हैं इसीलिए कि आकर पति दुनिया को विनाश कर पावन दुनिया का उद्घाटन कराओ। पति दुनियाटाके विनाश करे दाओ और नतून दुनिया उद्बोधन करे दाओ। द्वार खुलो, नतून दुनिया उद्बोधन करो माने द्वार खुले जाओ। बाप आकर गेट खोलते। शिव शक्ति माताओं द्वारा वंदे मातरम गाई हुई है ना। इस समय की कोई भी माता की वंदना नहीं की जाती, क्योंकि कोई भी श्रेष्ठचारी माता नहीं। ये समय क्यों श्रेष्ठचारी नहीं। वंदे मातरम यह श्रेष्ठचारी मातार गायन है। श्रेष्ठचारी माताएं नहीं है, श्रेष्ठचारी उनको कहा जाता है जो योग बल से पैदा हो। लक्ष्मी नारायण को श्रेष्ठचारी कहा जाता है। भारत में देवी देवताओं जब थे तो भारत श्रेष्ठचारी था। যখন देवी देवतारा छिलो भारते तो भारत की छिलो श्रेष्ठचारी छिलो। इन बातों को मनुष्य तो जानते ही नहीं, वे अपने ही प्लेन बना रहे हैं। गांधी जी भी राम राज्य चाहते थे। इससे सिद्ध है कि रावण राज्य है। भारत इससे सिद्ध है कि रावण राज्य है, भारत पतित है। परंतु राम राज्य स्थापन करने के लिए बेहद का बापूजी चाहिए। तुम जानते हो हम भी सोए हुए थे, আমরাও শুয়েছিলাম। बाप ने आकर जगाया। भक्ति मार्ग की रात पूरी हुई। भक्ति मार्गे रात पूरो हो गेछे। दिन शुरू होता है, रात पूरी हो, अब दिन हो रहा है। बाप संगम पर आया हुआ है। बच्चों ने दिव्य दृष्टि और ज्ञान का तीसरा नेत्र देते, जिससे तुम विश्व को जान चुके हो। तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है कि यह बना बनाया ड्रामा है। আমরা এখন বুঝতে পারছি যে এই ড্রামাটা থিওরি হয়ে আছে। হ্যাঁ, এই ড্রামার মধ্যে আমরা কি করছি, রোল করছি। ড্রামাটা अनादि अविनाशी ड्रामा जो फिरता ही रहता है, चलते ही থাকে। अभी तुम जितना जागते जग गए हो, सारी दुनिया सोई हुई है। আমরা তো জেগে গেছি, কিন্তু দুনিয়া সারা এখনো শুয়ে আছে। अभी तुम बच्चों को सारे विश्व के आदि मध्य अंत, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन का पता है। बाकी सारी दुनिया कुंभकर्ण की और ज्ञान नींद में सोई हुई है। यदि केउ घुमाय থাকে মানে পুরা ঘুমে আছে, তাকে তোলাটা কঠিন হয় আর তাকে তোলাটা সহজ হয়। एक डाक दिबेन उठे जाबे। जे जाने बुझे शुए आछे, चोख बंद करे आछे, ताके जतई डाकबेन किन्तु साड़ा दिबे ना। तो आज के मानव की हये गेछे, ओई रकमे घुम घुमछे, माने जेगे शुए आछे। तो जेगे आछे, शुए भावे शुए आछे, ताके तुलाटा एकटु कठिन होबे। यह कोई को पता नहीं कि पतित पावन कौन। पतित पावन के एटा जाने ना। पुकारते हैं पतित पावन आवो, यह नहीं कहते कि हमारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाओ। आओ और पतित पावन और सृष्टि आदि मध्य अंत रहस्य गुला के बुझाई दो। बाप कहते हैं तुम क्या कहते हैं, আমরা ওইভাবেই করতাম না।
আগে আমাদেরও মনোবিচার কি ছিল, এরকমই ছিল। यह सृष्टि चक्र समझाने से ही चक्रवर्ती राजा बनते हैं। এই সৃষ্টি চক্রটা যদি বুঝে যাওয়া হয় তখনই আমরা কিন্তু চক্রে আসার চক্রবর্তী রাজা হয়ে যাব। राजा बनते हो, याद से पावन बनते हो, यह भी जानते हो विनाश सामने खड़ा है। विनाश আমাদের সামনে আছে, নিকটে দাঁড়িয়ে আছে। लड़ाई भी होनी है, बाकी कौरव पांडव की लड़ाई नहीं। पांडव कौन थे, पांडव कारा छिलो, यह भी किसी की पता नहीं। सेना आदि की बात नहीं, तुम्हारी तरफ है साक्षात पारलौकिक पिता परम पिता परमात्मा। उस बाप से ही वर्षा मिलता है। तुम जान गए हो कृष्ण की आत्मा 84 जन्म भोग, अब फिर बाप से वर्षा ले रही है। 84 जन्म নিয়ে এখন বাবা থেকে वर्षा नीचे। वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी रिपीट होती है। अब तुम बच्चों को विनाश के पहले शतो प्रधान जरूर बनना है। विनाशेर आगे আমাদেরকে शतो प्रधान होते लगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। गृहस्थ व्यवहारते থাকতে বললেন বাবা, কিন্তু পদ্ম ফুল মতন থাকতে। পদ্ম ফুল কিভাবে থাকে, জলেই থাকে, জলটাও কাদা থাকে, ভালো জল থাকে না, ফ্রেশ জল। নোংরা জলের মধ্যে কাদা মধ্যেই থাকে, কিন্তু কাদা ও জল থেকে পদ্ম আলাদা থাকে। এইভাবে সংসারে তো দুঃখ আর শান্তি আছেই, তার মাঝখানেও ওর থেকে একটু বের হয়ে থাকতে হবে। এই জন্য বাবা বলে দিলেন পবিত্র থাকতে হবে কমল ফুল মতো। ভগবানও আজ শিব ভগবান বললেন গৃহস্থ ব্যবহার में रहते यह एक जन्म पवित्र बनो। একটি জন্ম বাবা পবিত্র থাকতে বললেন। একটা জন্মের মধ্যে কত জন্ম কত সময় পার হয়ে গেল। পাস্ট ইজ পাস্ট, যেটা পার হয়ে গেলে তাকে মনে করো না, এখন যেটা হাতে আছে ওটাকে নিয়ে ভাবো। यह तो ड्रामा में नूद है, सृष्टि को सतो प्रधान बनना ही है। यह ड्रामा की भाभी है, ईश्वर की भाभी नहीं। ड्रामा की भाभी ऐसी बनी हुई है जो बाप बेट समझाते हैं। आजकल जब पूरे होते तब बाप आते हैं। बाप कहते जब रात पूरी हो दिन शुरू होता वही मैं आता हूँ। যখন রাত पूरा হয় दिन शुरू হয় তখনই বাবা চলে আসে। शिवरात्रि भी कहते हैं। शिव के पुजारी शिवरात्रि को मानते हैं। शिवेर যারা ভক্ত তারা शिवरात्रि पालन করে। गवर्नमेंट ने तो हॉलीडे भी बंद कर दिया है, नहीं तो कम से कम 1 मास हॉलीडे चलना चाहिए। এত বড় সপ্তাহ পতিত পাবন সর্বশক্তিমান অলমাইটি গড যার অবতরণ দিবস হইল শিবরাত্রি জানে না, এই জন্য ছুটি দেয় না। তখন তো শিবরাত্রি ছুটি শুরু হয়ে গেছে। যখন বাবা বাণী চালিয়েছিলেন সেই সময় কিন্তু বন্ধ ছিল, শিবরাত্রিতে সব কিছু খোলা থাকত। बाप कहते हैं जब रात पूरी हो दिन शुरू हो तब ही मैं आता हूँ। शिवरात्रि भी कहते हैं। शिव के पुजारी शिवरात्रि को मनाते। गवर्नमेंट ने तो हॉलीडे भी बंद कर दिया है, अब तो छोड़ दिया, नहीं तो कम से कम 1 मास हॉलीडे चलनी चाहिए। कोई को पता नहीं शिव बाबा सर्व की सदगति देते। जब भारत स्वर्ग था तो देवी देवताओं का राज्य था, तो देवी देवता राज करतो। उस समय और कोई धर्म नहीं थे। যখন দেবী দেবতারা ছিল তখন অন্য রাজ ছিল না। देवताएं विश्व के मालिक थे, कोई पार्टीशन आदि नहीं थे, कोनो पार्टीशन छिलो ना। इसीलिए कहा जाता है अटल अखंड
सुख शांति संपत्ति का देवी राज्य फिर से हम प्राप्त कर रहे हैं। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा 5000 वर्ष पहले भी मिला था। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य में कोई दुख का नाम नहीं था। सूर्यवंशीते छिलाम तेता जुगे, चंद्रवंशीते आसलाम किन्तु कोनो दुखेर नाम छिलो ना। राम राजा राम प्रजा, तो राम वहाँ अधर्म की कोई बात नहीं, राम राज्य मध्ये कोई अधर्मेर कथाई छिलो ना। बाबा ने तुम्हारी ब्रह्मा और विष्णु के बारे में समझाया है। बाबा ब्रह्मा विष्णु रहस्यगुला के बुझिए दिच्छेन कि इन दोनों का आपस में क्या संबंध है। ब्रह्माई विष्णु विष्णुई ब्रह्मा, दुजन देखते पाच्छेन किन्तु पाठ एक जनेरे अदली बदली होते थाके। ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला। यह जैसे वंडरफुल चित्र बनाया है। बाप समझाते हैं यह लक्ष्मी नारायण अंत में आकर ब्रह्मा सरस्वती जगत अम्बा जगत पिता बनते हैं, जो दोनों तरफ विष्णु और लक्ष्मी नारायण बनते, माने विष्णु ही लक्ष्मी नारायण हुए जान। बाप बैठ समझाते हैं जो भी चित्र दिखाते हो उसमें कोई यथार्थ नहीं है। शिव का बड़ा चित्र बनाया है, यह भी अनर्थ भक्ति के कारण बहुत बनाते हैं, नहीं तो बंदी की पूजा कैसे, बिंदी की पूजा कैसे हो सकती। तो बाबा तो हইল ज्योति बिंदी, तो ज्योति बिंदु पूजा किभाবে होबे। जो भी चित्र दिखाते उसमें कोई भी यथार्थ नहीं। शिव का बड़ा चित्र बनाते, वह भी अनर्थ है। भक्ति मार्ग के कारण बड़ा बनाते, नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे हो। अच्छा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए कहते हैं, त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते, ब्रह्मा द्वारा स्थापना विष्णु द्वारा पालना, यह भी कहते हैं। परंतु ब्रह्मा तो स्थापना करते नहीं, ब्रह्मा तो स्थापन करे ना। स्वर्ग की स्थापना ब्रह्मा द्वारा करेंगे, स्वर्ग स्थापना होवे किंतु ब्रह्मार माध्यम नहीं। स्वर्ग की स्थापना तो परमपिता परमात्मा ही करते। यह आत्मा तो पतित है, इसको व्यक्त ब्रह्मा कहा जाता है। यह आत्मा पावन बन जाएगी और चली जाएगी। सतयुग में जाकर नारायण बनते तो प्रजापिता ब्रह्मा जरूर यहाँ चाहिए। चित्र फिर कहाँ दे दिया है। जैसे यह ज्ञान के अलंकार वास्तव में तुम्हारे परंतु विष्णु को दे दिया है। ज्ञानेर अलंकार जो विष्णु के 4टा अलंकार दिए ना, शंख चक्र गदा पद्म, এই 4টা अलंकार आमादेर, किन्तु आमरा सामलाइते पारी ना, एदिक ओदिक राखे दी, एइजन्य विष्णुके दिए दिच्छे। कोनो किछु बोले ना तुमी तुम्हाके देওয়া যাবে না, তুমি ঠিকভাবে রাখবা না, তো ব্রাহ্মণরা অলঙ্কারটাকে নেয় তারপরে এইদিক ওইদিক রাখে দেয়। এই জন্য বাবা কি করলেন, সঠিক জায়গায় দিয়ে দিলেন, বিষ্ণু চতুর্ভুজ সম্পূর্ণ বিষ্ণুকে দিয়ে দিলেন। কিন্তু ওই অলঙ্কারটা আমাদেরই ছিল, परंतु विष्णु को दे दिया है। नोधा भक्ति में भी साक्षात्कार होता है। मीरा का भी नाम गाया हुआ है ना। पुरुष में नंबर 1 भगत नारद, माताओं में मीरा गाई हुई है। तुम अभी नारायण अथवा लक्ष्मी को वरने के लायक यह ज्ञान सुन रहे हो। लक्ष्मी नारायण के बरार जन्य बरण करार जन्य आमरा এই জ্ঞানটা শুনছি বা ধারণ করছি। तुम्हारा
स्वयंवर होता है। नारद के लिए भी कहते हैं, सभा में आकर कहा हम लक्ष्मी को वर सकते हैं। अभी लक्ष्मी को वरने लायक तुम बन रहे हो। बाकी वह सब है भक्ति मार्ग की कथाएं। बाप रियल बात बैठ समझाते हैं। लक्ष्मी सतयुग में, नारायण भक्ति मार्ग में। सतयुग में फिर नारद कहाँ से आया? राधे कृष्ण का स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते, यह भी भारतवासी नहीं जानते। कितना अंधश्रद्धा से बैठे हैं। गांधी की नाभि से नेहरू निकला, अब कहाँ वह विष्णु देवता, कहाँ यह मनुष्य। इन सब बातों को तुम बच्चे अब समझते हो। नंबर 1, सबको सुख खुशी रहती है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। यह तो कभी सुना नहीं होगा, क्योंकि गीता में श्री कृष्ण भगवान ने आज लिख दिया है। भगवान कब आया, कब आकर गीता सुनाई, तिथि तारीख कुछ नहीं। कल्प की युग ही आते हैं। एक कल्प माना 5000 बछरे परे आसे। वर्ष कह देते हैं। कोई की भी बुद्धि में आता नहीं। अब बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। कारो बुद्धिते आसे ना, এই জন্য बाबा की করতেছেন এখন বসে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। ब्राह्मणদের झाड़ মানে গাছ বাড়তে থাকবে। पाता रहेगा, पाते पाते अनगिनत से हो जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो वर्ण कैसे चक्र लगाते। हम ब्राह्मणों का वर्ण सबसे ऊंचा है। ब्राह्मण वर्ण, ब्राह्मण माना ब्राह्मण नीति के धारण करे, जरा जीवने त्याग तपस्या करे, সেই হলো ब्राह्मण। तुम सच्चे रूहानी सोशल वर्कर हो, समाज सेवा सत्याकारे। परम पिता परमात्मा हमसे सेवा करा रहे हैं। यह रूहानी सेवा कराते, वह जिस्मानी सेवा कराते। तुमको कहते हैं तुम भारत की क्या सेवा करते हो? बोलो हम रूहानी सेवाधारी स्वर्ग का उद्घाटन करा रहे हैं, स्थापना करा रहे हैं। शिव बाबा है कर्म करावन हार, जो करवा रहे हैं और कोई सिखला न सके, इसीलिए कर्म करावन हार बाप को कहा जाता है। तुम बच्चे भी यही शिक्षा देते हो। बाप को याद करो और सुदर्शन चक्र याद रखो। याद रखो दूसरा पुरुषार्थ कर ऊंच चढ़ेंगे। मैसेज देने वाला रह जाएंगे। याद का पुरुषार्थ न करने से इतना ऊंच पद नहीं पाते। दूसरी याद की यात्रा से पावन बन जाते हैं। जैसे बाबा बधेलियों का मिसाल देते हैं। बधेली माना जादेर बंधन आसे, ये बाबार ज्ञाने आसार जन्य अनेक धरनेर समस्या आसे, वह याद में जास्ती रहती है। बाबार घरे आसा, बाबार कथा सुना, जार बाधा आसे तारा बेशी बाबा के स्मरण करे, जादेर बंधन तारा बेशी चेष्टा करे। तो बाबा बोले दिलेन जे बाधेलिया शक्ति के
বেশি বাবাকে স্মরণ করে, কেন কি বাঙালিদের বন্ধন আছে, আর যারা স্বাধীন তখন তো ওদের কোনো ব্যাপার নেই। तो बाबा कहते हैं कि बधेलिया सब থেকে বেশি বাবাকে স্মরণ করে আর বাবা ওদের মহিমা করতেছে। वह याद में जाती रहती है, बेगर देखे भी पत्र लिखती है, বাবাকে দেখে নাই কিন্তু বাবাকে পত্র লিখতেছে, বাবা हम आपके हो चुके, হয়ে গেছে, দেখে নাই কিন্তু এগুলো। हम पवित्र जरूर बनेंगे, तुम बच्चों की ही बाप से प्रीत बुद्धि है, तुम्हारी ही माला बनी हुई है, विष्णु की माला ही रुद्र की माला ऊपर में है, जरूर रुद्र माला उठाते ही पहले फूल और 2 दाने हाथ में आते, उसको नमस्कार करते, फूल और 2টা দানা সাথে আসে, তাকে নমস্কার করে, নমস্কার করে এটা হলো মাম্মা বাবা আর ফুল বাবা, এই 3 জনেরই यादगार। ওই মালা মধ্যে 3টা এরকম 2টা দানা থাকে, একটা ফুল থাকে, যাকে মালা ফেরে নেওয়া পরে কি করে ওটাকে চুমন করে। তো ওই জন্য বাবা বললেন, ड्रामा प्लेन अनुसार बाप कहते हैं, बच्चे सुख धाम चलना है तो पवित्र बनना है, मेरे को याद करो, मांगना कुछ भी नहीं है कि कृपा करो बा मदद करो, नहीं, हम तो सबको मदद करते हैं, पुरुषार्थ तो तुमको करना पड़े, पुरुषार्थ छाड़ा तो बाबा मदद दिबे ना, মানে মদত বাবা দিয়ে যাচ্ছে, অলরেডি কাজ শুরু, কিন্তু আমরা পাবো না। आशीर्वाद की बात ही नहीं है, बाप कहते हैं मामेकम याद करो, याद करना तुम्हारा काम है। বাবা বললেন বাবাকে স্মরণ করা এটা আমাদের কাজ। ডাইরেকশন দেনা ইহ কৃপা है, ডাইরেকশন যে দিচ্ছে এটাই হলো বাবার কৃপা। बाकी तो भल खाओ पियो घूमो फिरो, तुम्हें पवित्र भोजन ही खाना है, हम देवी देवता बनते हैं, वहाँ प्याज आदि थोड़े ही होगा, यह सब यहाँ छोड़ना है, एगुला खावा ओखाने खाद्य खावा होवे ना, यह चीज़ें वहाँ होती नहीं, बीज ही नहीं है, एगुला बीजन परंतु होवे ना, बीची ना थकले तो गाछ होवे ना। अब बाप बच्चों को कहते हैं, मुझे याद करो और संग तोड़ो, और संग तोड़ मुझे संग जोड़ो, जोड़ो तुम पावन बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नंबर 1, पास्ट इज पास्ट, जेटा पास्ट हो गेल ताके निये भावे चिंता करे कोनो लाभ नहीं। पास्ट इज पास्ट, जो बीत गया सो उसको, जो बीत गया आओ भूल कर गृहस्थ व्यवहार में रहें, और गृहस्थ व्यवहार था के शतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है, पहले पावन जरूर बनना है। नंबर 2, भारत को स्वर्ग बनाने में सच्चाई सच्चाई सेवा कर तपस्या करना है, खान पान आदि शुद्ध रखना है, पवित्र भोजन ही खाना है। वरदान, रूहे गुलाब बन दूर दूर तक रूहानी खुशबू फैलाने वाले रूहानी सेवाधारी भव। रूहानी रूहे गुलाब अपनी रूहानी वृत्ति द्वारा, रूहानी वृत्ति माना विचार द्वारा
विचार द्वारा खूब दूर दूर तक फैलाए। उनकी वृत्ति में सदा सुप्रीम रूह समाया हुआ रहता है। वे सदा रूह को देखते। रूह में गुलाब अपनी ओर आकर्षित करता है। अभी सदा रूहानी गुलाब अपनी तरफ, गुलाब अपनी रूहानी वृत्ति द्वारा रूहों को खुशबू दूर दूर तक फैलाते। उनकी दृष्टि सदा सुप्रीम रूह समाया हुआ रहता। वृत्ति मध्य दृष्टि मध्य सुप्रीम रूह सामिये थाके, माने चोखे मध्य ही थाके। वे सदा रूह को देखते, रूह से बोलते मैं रूह हूँ। रूह के देखते, रूह साथे कथा बोलतो, निजे केও मने करतो जे आमी हইলাম रूह। सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में चलता। सब समय बाबा छत्र छाया ही चले। मुझे रूह का करावनहार सुप्रीम रूह है। मुझे रूह का करावनहार सुप्रीम रूह है। आमी रूह और आमा द्वारा जे कराচ্ছে उनी हलो सुप्रीम रूह। ऐसे हर सेकंड हाँ जी को हजूर अनुभव करने वाले सदा रूहानी खुशबू में अविनाशी और एकरस रहते। चाहते हैं रूहानी सेवाधारी अर्थात नंबर 1 विशेषता। स्लोगन: निर्विघ्न बन सेवा में आगे नंबर लेना अर्थात नंबर 1 भाग्यशाली बनना। निर्विघ्न बने सेवा करते हो। यदि विघ्न पड़ते से तो वही सेवा ठीक अकाउंटे जमा है। दीदी मनमोहिनी जी की विशेषता: मर्यादा पुरुषोत्तम स्थिति। दीदी स्वयं भी ईश्वरीय मर्यादा का कंगन बांध कर रखती और सभी का उस पर ध्यान खिंचवाती। ईश्वरीय मर्यादा ऊपर ध्यान खिंचवाते। ब्राह्मण सो देवता बनने वाले। देवता को विशेष संग अनदोष न लग जाए। दीदी पहले शिक्षा यही देती कि संग से अपनी संभाल करना, पवित्रता के व्रत को कभी खंडित होने नहीं देना, ब्रह्मचर्य के साथ ब्रह्मचारी बनकर रहना। ब्रह्मचर्य के साथ ब्रह्मचारी बनकर रहना। ब्रह्मचर्य तो थाके लेकिन एखाने बाबा बोले ब्रह्मचारी होए थाकते। अच्छा, ओम शांति।